Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This video is the second of its kind in the Monday Motivation series and ये थोड़ा late है but let's not dwell on not being able to follow the schedule because we are trying. It's new and it's going to take some time for us to make this habit. So yeah, दैट्स दैट इस हफ्ते मेरे पास बहुत सारा काम था एंड पिछले एटलीस्ट 4-5 days से आई वॉज ट्राइंग टू गेट वन शूट राइट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड एंड आई वॉज सो obsessed with it. Like I'm super grateful that I get to do this work for this particular brand and you know इतना मज़ा आ रहा था सोच के बात करके पूरा मीटिंग वगैरह करके फिर शूट करके फिर उसको एडिट करके everything was so great but yeah like सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होता थोड़ा ups and downs चलता रहता है but I just feel like the number one thing in today's motivation video, in today's Monday motivation video, which will be coming out on a Wednesday, is going to be gratitude. Like if you really enjoy doing what you're doing and you get to do it, I think the gratitude will help you stay motivated and it will help you push through any circumstance. So even if like it is chaotic at times and it is challenging as it should be, मतलब अगर थोड़ा challenge नहीं होगा, थोड़ा uncomfortable नहीं होगा तो आप grow कैसे करोगे, तो फिर आप सीखोगे कैसे, आप आगे कैसे बढ़ोगे. It won't be as rewarding as it would be once you overcome those challenges because you will come out of it as a whole different person. And I think that is what matters at the end of the day because there's always room for improvement and आपको जितना सीखने मिल रहा है especially in the thing that you like to do. अगर जैसे मेरे को फिल्मिंग बहुत पसंद है and everything related to the camera, in front of the camera, behind the camera, सारा काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मेरे को इसके बारे में सीखने में बड़ा मज़ा आता है. तो अब ये तो नहीं होगा कि सब लोग आके मेरे को एकदम प्यार से हाथ पकड़ के सिखा देंगे जैसे बचपन में सिखाते थे. तो थोड़ा सा ऐसा क्लैश ऑफ ओपिनियन हो सकता है. समटाइम्स यू नो यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू लर्न समथिंग एंड समटाइम्स कितना भी ट्राई कर लो तुम्हें कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आएगी बट it's okay. You just have to give yourself the time and space you need to learn while you are thankful for the opportunity that you have because there are a lot of people who would love to have similar opportunities but are not in a similar position. So we just need to be mindful of that and that kind of fills your heart with a lot of positivity and when you are filled with positivity I think you create a lot of opportunity for yourself. And there's nothing better than creating opportunities for yourself. It's like it's such a rewarding feeling. It's such a great feeling to have कि हाँ तुमने किसी चीज़ के बारे में ऐसे बस सोचा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती तो और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि हाँ यूनिवर्सल लाइक बेटा जाओ ये काम तुम करो ये तुम्हारे लिए ही बना था तुमने मांगा था मैंने कुन बोला और कंप्लीट हो गया लाइक फुलफिल हो गया. सो आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल. Second thing that I did throughout this week to motivate myself was put on my makeup, wear my work clothes, whatever it may be. मतलब अगर शूट नहीं भी होता तो भी मैं एकदम मस्त तैयार होके आ जाती कि हाँ मैंने मेरी लाली लगा ली, मैंने मेरी लिपस्टिक लगा ली. Now I'm looking very presentable, very nice. I feel good about myself and that helped me feel good about the work that I'm doing as well. It kind of like just set the mood right and sometimes तुमको mood right set करने की ज़रूरत होती है कि हाँ अब हमने बाल वगैरह बना लिए थोड़ा खुद को ध्यान दे दिया खुद के ऊपर ध्यान दे दिया. I think it's a feeling, it's a vibe. When you create the vibe तो बाहर की external vibe भी change हो जाती है. It starts from within. Like आप internally vibe को change करो. जब आप internally vibe को change करते हो तो आपका external vibe भी change होता है. And that is very contagious. तो फिर वो contagiousness ऐसे लोगों के पास जाती है और फिर लोग भी मतलब वो वाइब के साथ वाइब करने लगते हैं. फिर लोग भी चेंज हो जाते हैं. फिर सबको मज़ा आने लगता है. फिर सब लोग एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं. इतना मज़ा आता है. इट्स लाइक डिवाइन कनेक्शन. बड़ा मज़ा आता है ये सब होते हुए देखने में अपने आँखों से. सो ट्राई करके बताना अगर ये तुम्हारे साथ वर्क करा हो तो. ओके सो
दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव डन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब भी मैं कोई मील वगैरह खाती हूँ, मेरा लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, आई लाइक टू पेयर इट अप विथ लाइक अ नाइस व्लॉग। पहले मैं गौरव तनेजा के व्लॉग्स देखती थी, फिर मैं तन्मय भट्ट के व्लॉग्स देखने लगी, ऐसे करके मैं बहुत लोगों के व्लॉग्स देखती थी। तो इट गिव्स मी एन इंसाइट इन देयर लाइफ कि भाई ये लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑल्दो इट्स ऑल हैवीली एडिटेड, आई 100% गेट इट, बिकॉज इवन आई एडिट माई स्टफ बिफोर अपलोडिंग इट, बट स्टिल देयर इज दिस ऑनेस्टी, देयर इज दिस ऑथेंटिसिटी समवेयर। एक जो वाइब होता है, एक फीलिंग होती है, वो इंस्टिंक्टिवली आपको क्लिक करती है। तो मज़ा आता है वो चीज़ देख के, सुन के कि हाँ दाल चावल खा रहे हैं, वही मतलब दोपहर है तो कुल्फ़ी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब एकदम दिल को खुश कर देती है, एंड अपने आप से ऐसे मोटिवेशन आता है कि भाई यही बेसिक चीज़ें करके ये बंदा ये कर सकता है, ये बंदा यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये बंदे ने इतनी सारी चीज़ें अचीव करी हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास तो ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। तो फिर वाई एम आई वॉलोइंग इन सो मच सैडनेस एंड पिटी? लाइक मैं अपने आप के ऊपर दया करना कब बंद करूँगी या बंद करूँगा कि भाई आई स्टार्ट गिविंग माई सेल्फ द लव एंड सपोर्ट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम पीपल आउटसाइड। जब मैं खुद को ही नहीं दूँगी तो लोगों से कहाँ से मिलेगा? सो या, एंड व्लॉग्स एक देखती हूँ। सेकेंड थिंग दैट आई वॉच इज़ इंटरव्यूज। सो for example, if I really like Deepika, I like Shahrukh, I like Priyanka. So my favorite pastime is I just go through their interviews. मतलब the way they talk, the way they sit, the way they answer, what they are answering, क्या बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ रेफ़र कर रहे हैं, किस बात का क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन पे कैसा रिएक्शन आया है, मैं बहुत माइन्यूटली देखती हूँ। मैं एकदम ऐसे छोटी छोटी चीज़ एकदम ऐसे आँखें छोटी कर करके देखती हूँ, और सारी चीज़ों को ना देख के देर आर इंटरव्यूज़ वेयर आई हैव टेकन स्क्रीन शॉट्स ऑफ दीपिका। लाइक लिटरली देयर वाज दिस वन इंटरव्यू आई रिमेंबर विद अनुपमा। आई थिंक शी वॉज वेयरिंग समथिंग ब्लैक एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट सम रीसेंट मूवी, कुछ बोल रही थी, एंड उसमें एक क्वेश्चन अनुपमा ने पूछा था कि भाई who do you think would have done a certain role? I think पद्मावती का रोल था या कोई तो रोल के बारे में उससे पूछा, एंड शी वेरी कॉन्फिडेंटली सेड कि नहीं, मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता था, आई डिड इट द बेस्ट। एंड आई वाज लाइक ब्रो, यू नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स ओनली आफ्टर यू पुट इन द अमाउंट ऑफ आवर्स इन योर क्राफ्ट, कि वो आपको अंदर से फीलिंग आई कि भाई मैंने नेल करा है, मैंने ये चीज़ बहुत तोड़ करी है, लाइक मेरे से बेटर तो और कोई कर ही नहीं सकता है, ये तो मतलब बेस्ट है। तो वो वाली फीलिंग जब आपको अंदर से आए कि हाँ मैंने पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है, 300 क्वेश्चन का अगर एग्ज़ाम है तो मैंने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 500-700 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज निकाले हैं। हो सकता है किसी दिन 200 करे हो सकता है किसी दिन 700 करे हो, तो वो एवरेज आउट होके 400-450 क्वेश्चन तो मैंने डेली बेसिस पे करे ही है। दैट इज़ मोर देन योर डे। तो दैट इज़ वन इंडिकेटर। या फिर तुम जैसे अभी फिल्मिंग वगैरह कंटेंट के अंदर आई एम ट्राइंग टू स्पेंड ऑल माई टाइम इन इट, तो इसमें मेरे पैरामीटर्स अभी चेंज हो रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज टू गेज माई ओन परफॉर्मेंस, एंड एवरी टाइम ऑडियंस रिस्पॉन्स इज़ नॉट द बेस्ट वे टू गेज इट, बिकॉज समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट देन यू नो इट्स लाइक यू आर हैमरिंग एंड देन फाइनली एक दिन बहुत अच्छा हो जाता है। वो हैमर करने के टाइम तो लेकिन आप पूरा टाइम बहुत एफर्ट डाल ही रहे हो ना, तो जब तक अच्छा नहीं होता उस मोमेंट तक यू कैन नॉट लाइक किल योर सेल्फ कि भाई नहीं हो रहा है ये वो करके। तो मतलब कहने का मतलब ये कि तुम लोग सब्सक्राइब कर लो कमेंट कर दो, बहुत सारा प्यार दिखा दो, और तुम लोगों ने हमेशा मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, और बहुत ज़्यादा मेरे को अनक्वेश्चनड रखा है। कभी मेरे को ये नहीं बोला कि आपने ये बोला था ये नहीं किया, या आपने ये करना था ये नहीं किया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे। यू नेवर बिन मीन टू मी, यू ऑलवेज बिन नाइस टू मी, सो आई एम जस्ट लाइक मोर देन ग्रेटफुल कि आई गेट टू डू दिस फॉर अ लिविंग for myself and for you. So thank you so much for that, and yeah, I love you so much. एक और चीज़ मैंने अभी रिसेंटली करना शुरू करी है। मेरे को रिसेंट टाइम्स में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आई नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड यू नो लाइक बीइंग विद पीपल, टॉकिंग टू पीपल, फाइंडिंग आइडियाज़, फाइंडिंग पर्सपेक्टिव्स। उसके बीच में मेरे को एक ऐसा स्वीट स्पॉट ढूंढना है अपने लिए जहाँ पे आई एम विथ माई सेल्फ एंड आई एम ऑल्सो विथ पीपल, बट एट द सेम टाइम आई फील वेरी लोनली। इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल, बट इट्स लाइक भीड़ में होके भी आपको अकेला फील हो रहा है, तो ऐसे वाला एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन है। एंड वेन एवर आई फील लोनली आई फील वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड इन अ वे, नॉट टू यूज़ द टर्म क्वाइट लूजली, बट लाइक आई फील वेरी ब्लू. So these days what I'm trying to do is I
write all my feelings in a journal. It's a digital journal. It's like I just like basically started off writing my to do list, और फिर to do list में ही motivate करना अपने आप को, कभी कभार क्रिप कर लेना वहीं पे, फिर कभी कभार वाइन कर लेना. तो जब आप ये चीज़ लिखते हो ना कि भाई देखो ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, आई फील सो सैड, आई फील सो ओवरवेल्म्ड एंड वाई लाइक वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, ये वो करके जब आप ऐसी बातें बोल रहे हो तो अपने आप से ना एक आंसर आने लगता है. लाइक कितनी देर रोगे ना आप, लाइक यू गोइंग टू क्राई फॉर लाइक 2 minutes 5 minutes, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप ज़्यादा देर तक नहीं रो पाते हो. जब आपका एक बार वो लेट आउट हो जाता है, आफ्टर यू लाइक फेल्ट योर फीलिंग्स एंड आफ्टर यू लाइक गॉन थ्रू द इमोशंस, देयर इज दिस prefrontal cortex का logical reasoning that comes into power and it finds solution for you, like it is your superhero. So that prefrontal cortex will give you answers to whatever you need to know. It can be anything, like for example the other day I was thinking कि भाई रोज़ रोज़ खाने का क्या नया बनाऊँ, क्या करूँ, but this is a very common problem I know, but at times it just gets overwhelming कि क्या ही खाएं और क्या ही बनाएं. और I'm a big foodie, तो फूड को फ्यूल की तरह ट्रीट करने की मैं कोशिश जितनी भी करूँ, पर मेरे को अच्छा चटकदार खाने की बहुत आदत है. तो बेसिक आइडियाज़ हियर एंड देयर, थोड़ा सोचा करा, थोड़ा रो दिया, व्हाटएवर. ऐसी बातों पे कोई रोता नहीं है, बट हाँ आई एम अ बेबी लाइक दैट, सो आई क्राई. फिर दिमाग ने बोला कि भाई मेनू बना ले, अलग अलग आइडियाज़ पिंटरेस्ट से निकाल ले, यूट्यूब पे देख ले, इंस्टाग्राम की रील्स में देख ले, कितनी तो अच्छी अच्छी आइडियाज़ हैं, फिर तो तू उससे कंटेंट भी बना सकती है. लाइक भाई बात तो सही बोली, ये तो मतलब क्या दिमाग वाली बात करी है, थैंक यू ब्रेन. ऐसे ऐसे वाला हो गया था मेरा. तो लाइक शेल्डन लिटरली जैसे बिग बैंग थ्योरी में बोलते हैं ना थैंक यू ब्रेन, मेरा वो वाला मोमेंट था. एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी अबाउट इट कि अरे वाह क्या बात करी है, एकदम मैंने अपने दिमाग को ट्रीट करा है राइट. नॉट लाइक आई लेट इट सप्रेस नहीं करी अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को फील किया, फिर अपने ही दिमाग ने इसे सोल्यूशन निकाला. लाइक वाह भाई वाह क्या बात है. डस्टर आ गया तो बात करते करते ये बोर्ड का. सो कितनी जल्दी डिट्रैक हो जाते हैं हम. हाँ एक नई चीज़ जो मुझे ट्राई करनी है इस हफ्ते, इट्स कॉल्ड डोपामीन मेनू. नाउ आप लोगों को मतलब जो भी हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं, आई एम श्योर यू नो दैट वी गेट डोपामीन हिट्स फ्रॉम इट. लाइक अभी आप मेरी ये बात सुन रहे हो, आपने एक्टिवली इस पर क्लिक करा है, आपको मज़ा आ रहा है ये सुनने में, बट समटाइम्स एड्स आ जाते हैं, समटाइम्स कुछ अलग चीज़ें आ जाती हैं इंटरनेट पे इधर उधर आप जब मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, एंड दीज आर ऑल जस्ट डोपामीन हिट्स. सो अगर आपको कुछ एक एम है आपका कि मुझे समझो मैराथन के लिए ट्रेन करना है, तो अब मैराथन के लिए ट्रेन करना है, जॉब के साथ करना है, तो यू विल हैव लाइक 24 आवर्स इन योर डे. अब 24 आवर्स में से तुम 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, बचे 8 घंटे. अभी ना 8 घंटे में से 2 घंटा तुम्हें पक्के से ट्रेनिंग के लिए निकालना पड़ेगा, 2-3 घंटे सोशलाइजिंग वगैरह में जाएंगे, बाकी के 2-3 घंटे इसमें चले जाएंगे चोर्स मिसलेनियस एक्टिविटीज़ ये वो. तो बफर के लिए भी तुमको 1 घंटा रखना पड़ेगा. तो ऐसी तुम्हारा दिन का स्प्लिट ये रहेगा. नाउ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि वो जो तुम्हारे पास थोड़ा टाइम मिल रहा है ना बीच में, जहाँ पे तुम गैप्स ले रहे हो, जहाँ पे ब्रेक्स ले रहे हो, वहाँ पे इट्स बेसिकली लाइक तुम काम के बीच में 5 मिनट का अगर ब्रेक ले रहे हो, तो अगर वहाँ पे स्ट्रेचिंग कर लो, तो स्ट्रेचिंग वुड बी लाइक इट वुड बी लाइक अ गुड डोपामीन हिट. लाइक इट वुड बी ऐसे 5 मिनट्स के अंदर आपने एक्टिव ब्रेक लिया है. तो अगर वो होता है ना कि आप 5 मिनट बैठ के अगर स्क्रॉल करने लग गए, फिर 5 मिनट का स्क्रॉल आधे घंटे का स्क्रॉल बन गया, तो दिस इज़ लाइक अ माइंडलेस ब्रेक, दिस इज़ लाइक अ पैसिव ब्रेक. तो वी डोंट हैव टू डू दैट. दिस इज़ अ वे ऑफ getting strategic active breaks for yourself, and it's also like a way of rewarding yourself. I'll attach a few टेम्पलेट्स हियर, पिंटरेस्ट पे बहुत सारा मिल जाएगा, तो तुम लोग वहाँ से देख के अपने हिसाब से एक डोपामीन मेनू बना लेना जो भी तुमको चाहिए. बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू आई थिंक 3 कोर्स मील या 4 कोर्स मील, ऐसे में वो डिवाइड होता है. उसमें एपेटाइजर्स और साइड डिश, डेजर्ट, ये वो सब चीज़ें आ जाती हैं. अगर इसके ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊँगी, बिकॉज आई हैव नॉट मेड अ डोपामीन मेनू फॉर माई सेल्फ, बट या आई रियली लाइक टू मेक वन. तो विल डू दैट दिस वीक. शायद मैं अपनी स्टोरी पे अपलोड कर दूँ बना के. अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग माई प्रोसेस, लेट मी नो.
इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं वो भी कर दूँगी। एंड आई एम सॉरी कि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया, मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रहा था इसे बनाने का। एंड आई वाज लाइक मैं बिना मोटिवेशन के कैसे ये वीडियो बनाऊँ। देन व्हाट आई डिड वाज मैंने थोड़ा मोस्टली सेन का वीडियो देखा, थोड़ा मैं परेशान हुई, थोड़ा मैं लाइक आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स। फिर मैंने ये 5 पॉइंट लिखे, बस मैंने ये 5 पॉइंट लिखे कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ। फिर इन 5 पॉइंट के बाद में मैंने अपने आप से कहा कि मेरे को आप लोगों से बात करनी है, और आप लोग लाइक फैमिली हो, लाइक फ्रेंड्स हो मेरे, तो मैं आपसे बात करने के लिए क्यों मतलब परेशान हो रही हूँ, मेरे को क्यों ही परेशान होना है, मेरे को बस बात ही तो करनी है। तो फिर मैंने बस पॉइंट लिखे और जो मन में आया बोलती गई। और मोस्टली से इनका बहुत ज़्यादा रोल है मेरे ये अच्छे फील करने में, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड ऑडिबल के ऊपर मेरा क्रेडिट नहीं आया इस टाइम, लेकिन आई गॉट टू गुड टू बी ट्रू का फ्री वर्जन ऑन ऑडिबल, तो आई एम गोइंग टू पेयर माई read with her audiobook, and yeah, that's the motivation for the week. Lots of love. सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बता देना क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, और अगर मैं तुम्हारे कमेंट को रिप्लाई करने में लेट हो जाऊँ तो माफ़ कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।